اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ عالی جناب سید احمد پاشا قادری صاحب معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن اسمبلی، جناب احمد بن عبداللہ ولالہ صاحب معزز رکن اسمبلی حلقہ اعضا، جناب ممتاز احمد خان صاحب معزز رکن اسمبلی، جناب محمد معظم خان صاحب معزز رکن اسمبلی، جناب جعفر حسین معراج صاحب ڈپٹی میئر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن، اراکین بلدیہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی عزت ماں اور بہنوں، آج یہ عظیم الشان احتجاجی جلسہ عام جو منعقد کیا گیا ہے، اس جلسہ عام کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ عالی جناب اکبر الدین اویسی صاحب قائد مجلس اسمبلی پارٹی پر جو بزدلانہ قاتلانہ حملہ کیا گیا اس کے خلاف احتجاج کیا جا سکے۔ حضرات، احیاء مجلس کے بعد سے اگر ہم غور کریں تو ہر مرحلے پر مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف مخالفین نے سازشیں کی، حکومتوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے راستوں کو روکا۔ آپ حضرات جانتے ہیں فخر ملت کو 11 مہینے جیل میں نظر بند کیا گیا، لیکن مجلس کے ترقی کے سفر کو حکومت روک نہیں سکی۔ سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب علیہ الرحمہ کو 11 مرتبہ جیلوں میں ڈال دیا گیا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کے ترقی کے سفر کو حکومتیں روک نہیں سکیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پر پولیس نے حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو بچایا۔ اس کے بعد بھی مجلس اتحاد المسلمین کی ترقی کو حکومت، مخالفین اور پولیس روک نہیں سکی، اور آج 30 اپریل 2011 کو قائد مجلس عالی جناب اکبر الدین اویسی صاحب پر جو بزدلانہ حملہ کیا گیا، آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ حملے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ اسمبلی اور پارلیمنٹ کے انتخابات کے موقع پر مخالفین مجلس، جس میں ایک اخبار کا ایڈیٹر بھی انتخابی میدان میں تھا، مختلف سازشیں کیے، مختلف حربے استعمال کیے، لیکن اس کے باوجود بھی مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے روک نہیں سکے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اتحاد کی بدولت مجلس اتحاد المسلمین کو ایک عظیم کامیابی سے ہمکنار کیا، اور مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ اور 7 ارکان اسمبلی منتخب ہوئے۔ مخالفین مجلس نے یہ جان لیا کہ انتخابی میدان میں مجلس اتحاد المسلمین کو شکست دینا ناممکن ہے، تو سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ اخبارات کے ایڈیٹر بند کمروں میں سازشیں کیے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب اکبر الدین اویسی صاحب قائد مجلس اسمبلی پارٹی کو ختم کر کے مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کیا جائے، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے اسے کوئی دھکا نہیں لگا سکتا، اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے ہر مسجد میں دعا ہوئی، ہر گھر میں دعا ہوئی، ہندوستان کے ہر شہر میں دعا ہوئی، دنیا کے مختلف ممالک میں دعا ہوئی، مکہ مکرمہ میں
شریف میں دعا ہوئی اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ایسے شدید حملے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جناب اکبر الدین اویسی صاحب کو بچا لیا۔ آج وہ دواخانے سے ڈسچارج ہو چکے ہیں، لیکن میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھیں، اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ جناب اکبر الدین اویسی صاحب ہمارے درمیان آ کر اپنے ولولہ انگیز کتاب نہیں کرتے، اس وقت تک اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھیں۔ حضرات، ٹیلی ویژن پر آپ نے اس حملے کا مشاہدہ کیا کہ کس طریقے سے یہ یزید کی اولاد اکبر الدین اویسی صاحب پر وار کیے جا رہے تھے۔ اکبر الدین اویسی صاحب اس حالت میں بھی ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اللہ پر ان کو اتنا توکل تھا، نہ صرف انہوں نے ان حملوں کا مقابلہ کیا بلکہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی جان پر بات آتی ہوئے تو بچانے کے لیے پکارتا ہے، لیکن میرے قائد جناب اکبر الدین اویسی صاحب کے اس ایمان کو دیکھیے، اس مضبوط ایمان کو دیکھیے کہ اکبر الدین اویسی صاحب کی زبان پر اس حملے کے وقت بھی یا اللہ یا رسول اللہ، یہی یا اللہ یا رسول اللہ اکبر الدین صاحب کی زبان سے یہی الفاظ نکل رہے تھے۔ اور ہم نے اکبر الدین اویسی صاحب کو دواخانے میں بھی دیکھا، اکبر الدین اویسی صاحب کے لفظ پر، ہونٹوں پر صرف یہی الفاظ تھے، یا اللہ یا رسول اللہ۔ ایسا مضبوط ایمان والا قائد آج الحمدللہ آپ کی دعاؤں کے بعد صحت یابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرات، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی مکمل صحت یابی تک اپنی دعاؤں کو برقرار رکھیں، اور میں مخالفین مجلس کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ تم جناب اکبر الدین اویسی صاحب کو ناپاک منصوبے کے تحت جو حملہ کیے، اس حملے کے بعد مجلس اتحاد المسلمین اور زیادہ مضبوط ہو رہی ہے، اور مخالفین مجلس کو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب مجلس اتحاد المسلمین کے ہاتھ پاؤں میں مت آؤ ورنہ کھنجلے جاؤ گے۔ یاد رکھو، جو قوم حق انسانیت کو ادا کرنے کے لیے جاہ انسانیت و داہ کامل پر گامزن ہوتی ہے، وہ زندگی کے سنگلاخ داہوں، حوادث کے بعد سرسر اور مصائب کے طوفان سے گھبراتی نہیں، بلکہ ان کا سینہ سپر ہو کر مقابلہ کرتی ہے۔ شکریہ، خدا۔ اب میں علی جناب وجاد علی خان صاحب موجود رکن بلدیہ سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ کو مخاطب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ عالی جناب محترم المقام الحاج مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب معزز رکن اسمبلی و معتمد عمومی کلین مجلس اتحاد المسلمین، عالی جناب محترم المقام الحاج ممتاز احمد خان صاحب، عالی جناب محمد معظم خان صاحب، عالی جناب احمد بلالہ صاحب معزز اراکین اسمبلی کلین مجلس اتحاد المسلمین، عالی جناب جعفر حسین مہرا صاحب ڈپٹی میئر، عبداللہ نذیر صاحب، میناز صاحب، ڈائس پر بیٹھے ہوئے دیگر کارپوریٹرز، بزرگان ملت اور جوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ کلین مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام یہ اکبر الدین اویسی صاحب پر قاتلانہ حملے کا احتجاجی جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ یقیناً کلین مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف حیدرآباد، پرانا شہر، آندھرا پردیش بلکہ سارے ہندوستان کا احاطہ کر چکی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف ایوان بلدیہ، ایوان اسمبلی بلکہ ایوان پارلیمنٹ تک کے ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز اور مسائل کو اٹھا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھرتی ہوئی قیادت کو سالار ملت نے جب یہ کہتے ہوئے اپنے اجلاس میں یہ کہا کہ اب میں ملت اسلامیہ کی
خدمت کے لیے نوجوان نسل کے حوالے کر رہا ہوں، کیونکہ میری عمر اور صحت اس منزل پر پہنچ چکی ہے کہ میں نوجوان نسل سے مطمئن ہوں اور ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو یقیناً بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ بننے کے بعد، اکبر الدین اویسی صاحب قائد ایوان اسمبلی بننے کے بعد، مجلس اتحاد المسلمین کو جو 4 چاند لگا کر ان لوگوں نے ایک منزل تک پہنچایا، وہ مخالفین کے لیے برداشت نہیں ہوا کہ کم عمر نوجوان نسل آج اتنے ہندوستان کا احاطہ کر چکی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایوان پارلیمنٹ کے اندر آزاد ہندوستان سے لے کر آج تک کوئی اتنا کامیاب نوجوان رکن پارلیمنٹ نہیں جتنے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ جب سب سے پہلے آپ رکن پارلیمنٹ بنے تو ایوان پارلیمنٹ کے اندر یو پی اے کی چیئرمین سونیا گاندھی سے کہا کہ پوٹا ریویو کمیٹی قائم کی جائے اور سارے ہندوستان سے اس پوٹا قانون کے تحت صرف مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان بے قصور مسلمانوں کو رہا کیا جائے۔ یو پی اے چیئرمین سونیا گاندھی نے آپ کے مطالبے کو قبول کیا اور پوٹا قانون کی ریویو کمیٹی بنائی گئی اور پوٹا قانون کو ہندوستان سے برخاست کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہندوستان میں 62 برس سے مسلمان بے روزگاری، تعلیمی اور معاشی سیاسی پسماندگی کا نشانہ بن رہے ہیں، ان کے لیے ایک کمیٹی قائم کی جائے اور سارے ہندوستان کا احاطہ کرتے ہوئے اس کا جائزہ لیا جائے۔ یو پی اے چیئرمین سونیا گاندھی نے جسٹس راجندر سچر کمیٹی کا قیام عمل میں لایا، جن پر کروڑوں روپے کا خرچ ہوا۔ یہ کمیٹی کے ارکان سارے ہندوستان میں پھر کر مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی اور سیاسی پسماندگی کا جائزہ لیا اور آج کے سامنے پارلیمنٹ میں رپورٹ پیش کی گئی۔ جب 1984 کے اندر اندرا گاندھی کا قتل ہوا تھا تو سارے ہندوستان میں نعرہ دیا گیا تھا کہ مارو سردار جی کو جس نے مارا اندرا جی کو۔ دہلی میں فساد ہوا، لاکھوں سکھ مارے گئے تو جسٹس ناناوتی کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جب منموہن سنگھ وزیر اعظم بنے تو پارلیمنٹ میں جسٹس ناناوتی کمیشن کی رپورٹ پیش کی گئی تو کانگریس اور سونیا گاندھی نے معافی چاہا اور مرنے والوں کو 5 لاکھ کا اعلان کیا۔ آزاد ہندوستان کے بعد اگر اقلیتوں کی کوئی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی گئی تو وہ ناناوتی کمیشن کے بعد راجندر سچر کمیٹی کی رپورٹ اسد الدین اویسی صاحب کی کامیاب نمائندگی کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ پوچھا گیا کہ یہ کمیٹی کی رپورٹ تو آ گئی، یہ حقائق سامنے آ گئے کہ مسلمان تعلیمی، معاشی، سیاسی طور پر کتنا پسماندہ ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے وزارت اقلیتی بہبود، منسٹری فار مائنورٹی ویلفیئر کا قیام عمل میں لایا جائے۔ آزاد ہندوستان کے بعد وزارت اقلیتی بہبود کا قیام عمل میں لایا گیا اور یار انتھولے کو اس کا پہلا وزیر بنایا گیا۔ یہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی کامیاب نمائندگی کا نتیجہ ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں آئے دن بم دھماکوں کے اندر سارے ہندوستان سے بے قصور مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا۔ پارلیمنٹ میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے مدلل تقریر کی اور یہی بات کہی کہ یہ مسلمان مسجد کے لیے اور اللہ کے گھر اور درگاہوں کے لیے بم بلاسٹ نہیں کر سکتے، یہ مسلمانوں کا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ایک بھی مسلمان ملوث نہیں ہے۔ جب 2008 29 سپٹمبر کو مالیگاؤں میں بم دھماکہ ہوا تو ATS نے اس کی انکوائری کی تو سب کے سامنے دنیا کے آیا کہ ان بم بلاسٹوں کے اندر کون ہے۔ آشرم کی سادھوی پرگیا سنگھ سامنے آئی، مندر کا پجاری آسیم آنند اور دیانند سامنے آیا، رکن پارلیمنٹ آدتیہ ناتھ جوگی سامنے آیا، پھر اس کے بعد فوج کا سپاہی پروہت کرنل سری کانت سامنے آیا، تو آج یوگی رام دیو بابا آج اپنا ڈھونگی لے کر سامنے آ رہا ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ کون بم بلاسٹ کے اندر ملوث تھا۔ پھر بتاؤ 2008 سے لے کر آج تک کیا ہندوستان سے کسی مسلمان نوجوان کو یہ بم بلاسٹوں کے اندر گرفتار کیا گیا؟ نہیں کیا گیا۔ پھر مکہ مسجد کا جب 18 مئی 2007 کو بم بلاسٹ ہوا تو 14 نوجوان شہید ہوئے، 54 نوجوان زخمی ہوئے، تو اکبر الدین اویسی صاحب نے جب چدمبرم نے کل جماعتی اجلاس شری کرشنا کمیٹی کے تعلق سے تلنگانہ کے قائدین کو بلایا تو وہیں اکبر صاحب بھی گئے۔ تلنگانہ کے قائدین نے کہا کہ آندھرا پردیش کے اندر ہم پر ظلم ہو رہا ہے، یونیورسٹی پر ہمارے بچوں پر مقدمات دائر کیے گئے۔ کیا مقدمات دائر کیے گئے؟ ان لوگوں نے احتجاج کیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، پولیس کی گاڑیاں جلائی، بسوں کو جلایا، عوام کو نقصان پہنچایا، ان پر مقدمات دائر کیے گئے۔ ان تمام مقدمات کو واپس لیا جائے، پہلا ہمارا یہ مطالبہ ہے۔
अकबर साहब खामोश सुनते रहे। फिर चिदम्बरम से कहा, जब उन्होंने रजामंदी जाहिर की तो कहा, हाँ चिदम्बरम साहब, जो लोग सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, पुलिस की गाड़ियां जलाते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, बसों को जलाते हैं, अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके मुकदमात वापस लिए जाते हैं। लेकिन 18 मई 2007 को मक्का मस्जिद में हमारी इबादत गाह में बम ब्लास्ट हुआ, 14 नौजवान शहीद हुए, 54 नौजवान जख्मी हुए और हमारे ही नौजवानों पर मुकदमात डाले गए। मैं सबसे पहले मुतालबा करता हूँ कि मक्का मस्जिद में मुलविस मुकदमात पे जो नौजवान हैं उसको वापस लिया जाए और उनको मुकदमात खत्म किया जाए। चिदम्बरम ने कहा, ठीक है, हम आंध्र प्रदेश की होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखेंगे और उनकी फेरिस्त मंगाएंगे और उन तमाम के मुकदमात को वापस लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अकबर साहब की इस कामयाब नुमाइंदगी पर होम मिनिस्टर सविता रेड्डी को एक मुदल्लिल दरखास्त अकबर साहब ने दी और फेरिस्त दी कि ये तमाम बच्चे बेकसूर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिहाई के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिर उसके बाद आपने देखा कि आंध्र प्रदेश ऐवान असम्बली के अंदर अकबर साहब 2004 में फ्लोर लीडर मुंतखब हुए तो उन्होंने सबसे पहले राजशेखर रेड्डी से मुतालबा किया कि आपने सालाना मिल्लत से इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो जारी करते हुए मुतालबा ये वादा किया था कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा। आज ऐलान कीजिए असेंबली के अंदर। हम देख रहे हैं कि बहुत जश्न हो रहा है आंध्र प्रदेश में। 9 बरस की तेलुगु देशम हुकूमत का खात्मा हुआ, आप बरसरे इख्तिदार आए, बहुत फूल पहन चुके, बहुत जश्न मना चुके। अब काम की बात करें, एक हफ्ते तक अकबर साहब और हमारे तमाम अरकान असेंबली ने ऐवान की कार्रवाई को रोक दी और मजबूर किया कि 5% रिजर्वेशन का ऐलान किया जाए। ये अलग बात है कि कानूनी अदालती तावीलात में मसला गया, लेकिन 4% ऐलान हुआ। आज सरकारी और तालीमी मुलाजिमतों के अंदर मेडिकल इंजीनियरिंग, MBA और MCA के अंदर आज हजारों नौजवान इस रिजर्वेशन से मुस्तफिद होकर तालीम हासिल कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कोटा कानून के तहत जो अनीस मोयुद्दीन नामी नौजवान को रनवे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, जो लंदन से MBA करके आ रहा था, उन्होंने कहा कि इसको रिहा किया जाए क्योंकि हिंदुस्तान से कोटा कानून बर्खास्त हो चुका है। किस जुर्म में इस अनीस मोयुद्दीन को गिरफ्तार किया गया? तो अकबर साहब के एहतजाज पर अनीस मोयुद्दीन को रिहा किया गया। कई मरतबा पाशा कादरी साहब होम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर उस नौजवान को, उसके वालिद को, उसके भाई को ले गए और तमाम मुकदमात उस पर से हटाया गया। फिर उसके बाद उन्होंने उर्दू को 14 अजला में सरकारी जबान बनाने के लिए आवाज उठाई। 14 अजला के अंदर उर्दू को सरकारी जबान बनाया गया। फिर उसके बाद माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए लाखों रुपए के स्कॉलरशिप का ऐलान करवाया। 6 क्लास से 8 क्लास तक 600 रुपये और 9th और 10th के लिए 800 रुपये और इंटर और डिग्री के लिए 2500 रुपये सालाना मंजूर करवाया। आज लाखों बच्चे स्कॉलरशिप हासिल कर रहे हैं। फिर फीस रियम्बर्समेंट के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग, MBA और MBA के अंदर, MCA के अंदर जो काउंसलिंग में आते हैं उनकी फीस हुकूमत भरेगी। 27,500 रुपये की फीस आज हुकूमत भर रही है। बच्चा सिर्फ हॉल टिकट ले जाता है, काउंसलिंग में इंटरव्यू देता है, 27,000। एक ऑटो वाला जो 2700 रुपये जमा नहीं करा सकता, 27,500 रुपये आंध्र प्रदेश की हुकूमत आज भर रही है। किसका कारनामा है? अकबरुद्दीन अवैसी साहब का कारनामा है। ऐवान असेंबली में जब खड़े होते और डर जाते तो तमाम लोग परेशान हो जाते। सबसे बड़ा कारनामा उनका औकाफी जायदाद का है कि उन्होंने चंद्र बाबू नायडू की आंख में आंख डालकर उंगली उठाकर बताया कि बताओ चंद्र बाबू नायडू, तुमने अपने दौरे इख्तिदार में किसकी बाप की जागीर समझकर औकाफी जायदाद को तुमने विप्रो इंडिया को दिया, लैंको हिल्स को दिया, सॉफ्टवेयर कंपनियों को दिया और हाईटेक सिटी को दिया। तमाम के तमाम मुसलमानों के अराजियात हैं, उनको वापस किया जाए। न सिर्फ ऐवान असेंबली में गड़बड़ की बल्कि उसके दस्तावेजात लाए, उसके मुदल्लिल गवाह लाए, अदालत से रुजू हुए, कानूनी कार्रवाई की। अल्हम्दुलिल्लाह उनको सबसे पहली कामयाबी उस वक्त हुई जब कुतुब दक्कन हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की 50 एकड़ की जमीन राजशेखर रेड्डी ने और बाबा शरफुद्दीन साहब की कमेटी के हवाले किया। फिर दूसरी कामयाबी उस वक्त हुई जब टास्क फोर्स बेगमपेट के ऑफिस में पुलिस वाले नौजवानों को ले आकर जुल्म करते हैं। कहा ये किसी के बाप की जमीन नहीं, यह औकाफी जमीन है। पुलिस के हलक में पंजा डालकर उन्होंने टास्क फोर्स ऑफिस बेगमपेट की जमीन का कब्जा लिया। फिर उसके बाद जमात इस्लामी मुस्लिम मैसनरी के तहत जमीन थी, उनको उनकी जमीन वापस दिलाई। आज
शाह राजू खत्ताल साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन का मसला चल रहा है, मीर मोमिन साहब चुप रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का मसला चल रहा है, कई मसाजिद और आशिर खानों के मसाजिद का औकाफी जायदाद का मसला अकबर साहब आज लड़ रहे हैं। अरे ऐवान असम्बली में जब आपने बहस की और कहा कि रोशैया साहब कांग्रेस धोखेबाज जमात है, मुसलमानों से गद्दारी की, धोखा दिया, मुसलमानों की तालीमी माशी पसमानदगी की जिम्मेदार कांग्रेस जमात है, तो बुड्ढा भड़क उठा, उठ के कहा अध्यक्षा अकबरुद्दीन अवैसी एम చెప్తున్నారు अध्यक्षा अकबर अवैसी एम చెప్తున్నారు अध्यक्षा చెప్పండి अध्यक्षा। तो अकबर साहब वही अपने अंदाज में रिवायती हंस के मुस्कुराते रहे। तो स्पीकर साहब कहा अवैसी साहब प्लीज सिट डाउन, अवैसी साहब प्लीज सिट डाउन, बुड्ढा मर जाएगा हार्ट अटैक होके। अकबर साहब हंसते हुए बैठ गए अकबर साहब। जब अहमदुल्लाह से बहस हुई तो कहा स्कॉलरशिप अभी तक इस साल के जारी नहीं किए, भरम होकर कहा मुसलमानों के नाम पर तुम धब्बा हो, फला हो। तो अहमदुल्लाह साहब उठ के बोले अजी अकबर साहब तुम्हें गुस्सा काहे को करते सो जी, तुम्हें क्या होना सो बोलो मैं करता हूँ सो जी, तुम्हें गुस्सा ना को करो, मैं 20 को 3 तारीख को जियो निकाल को पूरे स्कॉलरशिप देता हूँ जी, अकबर साहब तुम्हें गुस्सा ना को करो। क्योंकि उन्हें मालूम है कि अकबर साहब गुस्सा अगर करे तो अहमदुल्लाह यहाँ से कड़पा वापस चले जाते। अरे ऐवान असम्बली ने किसने बात की? अरे आज जमीन की बात करने वालों, बारकस की जमीन की बात करने वालों, अपने हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे के अंदर अकबर साहब ने 99 से 2009 तक लेकर करोड़ों रुपए के बरकी बल्दिया बरसानी तरक्याती काम करवाए। अपने कॉरपोरेटर्स को मुर्गी की बच्चों की तरह लेकर फिरते, कलेक्टर के पास, कमिश्नर बल्दिया के पास, MD वाटर वर्क्स के पास, CMD इलेक्ट्रिकल्स के पास 2-2, 3-3 करोड़ रुपया मंजूर करवा के लाते। बारकस के कम्युनिटी हॉल के लिए 50 लाख रुपया मंजूर करवाया, ई लाइब्रेरी बारकस के लिए 50 लाख रुपया मंजूर करवाया, बारकस एरिया हॉस्पिटल के लिए 1 करोड़ रुपया मंजूर करवाया, बारकस में ड्रिंकिंग वाटर लाइन, करोड़ों रुपए के सीवरेज लाइन और CC रोड डलवाए, प्लेग्राउंड बनवाया। जमीन की बात करने वालों, तुम जो जमीन की बात कर रहे हैं बताओ किसके बाप की जमीन है? गवर्नमेंट की जमीन है, रेवेन्यू की जमीन है। गरीब मुसलमानों ने कहा कि हमको घर की जरूरत है। अकबर साहब ने चीफ मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर से कहा तो उन लोगों ने कहा हाँ ठीक है अकबर साहब, आपका मुतालबा हम मानते हैं, हमारे पास फंड है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल रिन्यूएबल मिशन का फंड है, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का फंड है, हम घर बना के देंगे, लेकिन आप जमीन बताइए। तो इन लोगों ने कहा ये हमारी जमीन है। जब मैंने तकारीर में ये बात कही कि क्या मिर्जा मीर उस्मान अली खां आपकी दादी जान खिदमत करे थे जो महर में लिख के दिए थे, आप जो जमीन को कह रहे हैं, तो आज बुरा मालूम हुआ। और आज एक मोहतरमा ने 4 TV को इंटरव्यू करते हुए गौसली सईद और माजिद साहब से सवाल किया कि मजलिस के कारपोरेटर ने इस बात कही, हमको बुरा मालूम हुआ। लगता है आंटी आप भी वहीं के लगते हैं। आंटी मैंने कौन सी गलत बात कही? आंध्र प्रदेश सरजमीन दक्कन में जमीना सिर्फ 2 ही लोगों के हैं, एक निजाम मीर उस्मान अली खां के जमीनात है, दूसरे इंडियन गवर्नमेंट सरकार की जमीन है। ये तीसरी जमीन आपकी कहां से आई मुझे नहीं मालूम। जब आपने कह दिया कि ये जमीन गवर्नमेंट की नहीं है तो फिर किसकी है? निजाम मीर उस्मान अली खां की नहीं तो और क्या है? अरे रेवेन्यू की है, कलेक्टर की है, गवर्नमेंट की जमीन है। आपको इतना बुरा क्यों मालूम हुआ? मेरी समझ से बाहर है। अगर आपको दिली तकलीफ पहुंची है तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन अकबर साहब ने उन जमीनों पर बोर्ड लगवाया कि दिस लैंड इज बिलोंग्स टू गवर्नमेंट और इंशाअल्लाह वहां पर घर बनेंगे और गरीबों के हवाले किया जाएगा। अरे ऐसा खायर जो अपने जाती सरमाए से चाहा तो करोड़ों रुपए की प्लाटिंग कर सकता था, लेकिन एक ही जमीन अकबर साहब ने अपने हल्के में नहीं लिया। आपने सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट कायम किया अपने जाती सरमाए से। रियासत नगर जमाल कॉलोनी के अंदर एक स्कूल चलाते हैं जहां 300 बच्चे पढ़ते हैं। मेरे हल्के जो याकूतपुरा मुमताज खां साहब के हल्के में आ चुका है चंचलम, वहां पर 7 मंजिला दवाखाना बनाया, 700 बच्चे वहां तालीम हासिल करते हैं। यतीम बच्चे, एसीर बच्चे, गरीबों के बच्चे जिनको मुफ्त दाखिला, मुफ्त तालीम, मुफ्त यूनिफॉर्म, मुफ्त खाना दिया जाता है। अरे तुमने खंजर अकबर साहब पर नहीं, यतीम बच्चों के मुस्तकबिल पर चलाया है। तुमने उन बेवा माओं की आरज़ों पर पानी फेर दिया है जिनके तालीम और किफालत अकबरुद्दीन अवैसी साहब करते हैं। लड़कियों के लिए एम्ब्रॉयडरी, मेहंदी डिजाइनिंग, कंप्यूटर कोर्सेज, इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो खुद रोजगार हासिल करे। अरे ऐसे कायद पर तुमने हमला किया, सैकड़ों लड़कियों की शादियां करवाई। एक मुख्तसर सा वाक़या कहूँ कि जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी की टीम जब हैदराबाद को
आई थी, एक बच्ची की माँ और भाई ऑटो में उस काफिले के पीछे फिर रहे थे। हमारे अरकान असेंबली की गाड़ियां भी थी। वो फिरते फिरते असर के वक्त अवैसी हॉस्पिटल को पहुंचे तो उस खातून ने मुझे पकड़ कर कहा कि मुझे मिलाइए अकबर साहब से, 2 मिनट मुझे अर्जेंट बात करना है। मैंने कहा अकबर साहब दिल्ली से टीम आई हुई है, काफिले के साथ है, अम्मा आपसे नहीं मिल सकते। तो बाबा मैं तुम्हारे पेट में मुंडी डालती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मिलाइए। तो मैंने कहा एक काम कीजिए, लिफ्ट के सामने सीढ़ियां हैं, एक यू टाइप के सीढ़ियां हैं, एक सीढ़ी के सीधी जानिब से अकबर साहब और टीम चढ़ेगी, आप दाएं साहब से चढ़िए, आप उनके सामने आ जाएंगे और 2 मिनट में उनसे बात कर लीजिए। वो खातून भागते हुए चील की तरह ऐसी गई, अकबर साहब के सामने आ गई। अकबर साहब वही अपने रिवाया अंदाज में कहा, बोलिए अम्मा क्या बात है? तो बोले साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बच्ची की आज शादी है, घर पे बारात आ चुकी है, दुल्हन को तैयार किया जा रहा है, लेकिन अब तक जहेज का इंतजाम नहीं हुआ। अगर मेरी बच्ची को जहेज नहीं दिए अकबर साहब तो मेरी बच्ची की बारात वापस चले जाएगी और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो अकबर साहब ने कहा आप अब बोलने की क्या जरूरत है, ये बात आप पहले क्यों नहीं बोले? थोड़ी देर गुस्से में आए, फिर मैं करीब में था, बोले ये वजह साहब इनके साथ सुल्तान शाही को जाइए और इनके घर पर देखिए वाकई मुस्तहिक है या शादी हो रही है या नहीं हो रही है, फिर मुझे फोन पे इत्तला दीजिए। मैं उनके साथ गया, घर पे देखा तो यकीनन लाइट पड़ चुकी थी, लोग आ चुके थे, दुल्हन को तैयार किया जा रहा था, लेकिन फर्नीचर नहीं आया था। फिर मैंने फोन करके कहा हाँ अकबर साहब ये वाकया सही है, वाकई ये लोग परेशान है, शादी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आप फलां जगह से जाकर इनको फर्नीचर दिला दीजिए, खुद सामने ठहर कर लोड करवाइए और घर पे पहुंचा दीजिए। मैं जिसी वक्त 1 घंटे के अंदर फर्नीचर ले जाकर पहुंचाया तो उस लड़की की माँ आसमान के ऊपर हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह तूने हमारी इज्जत बचाई तो अल्लाह ने अकबर अवैसी की इज्जत को बचा। क्या 30 अप्रैल 2011 को अल्लाह ने मदद की और अकबर साहब की इज्जत बचाई और एक हाथ से दुश्मन के खंजरों का मुकाबला किया और अल्लाह ने आज उनको सेहत दिया। अरे कई नादार लड़कियों की शादी उन्होंने की, फिर उसके बाद 8 दिन के बाद 1,20,000 रुपये उन्होंने मुझे दिया, कहा कि अकबर साहब फला फर्नीचर वाले के मैं बाकी हूँ, आप ले जाकर दे दीजिए। आज भी कई लड़कियों के रुखे और दरखास्तें मेरे पास और सलीम बेग साहब गालिबन मौजूद हैं, उनके पास मौजूद है जो लड़कियों के शादियाँ करवाए। अरे तुमने अकबर साहब पर खंजर नहीं बल्कि नादार लड़कियों पर खंजर चलाया है जिनका मुस्तकबिल रोशन होने से तुमने तारीख करने की कोशिश की है। सवाल ये पैदा होता है कितना सब हो गया, कायदे ऐवान असेंबली पर इतना बड़ा दिन दहाड़े हमला हो गया तो हमारी नाहल पुलिस क्या कर रही थी? अरे भाई हमारी पुलिस क्या करेगी? जिस पुलिस का कमिश्नर पुलिस 31 मार्च 2010 को पाशा साहब के हल्के मूसा बोली में फसाद हुआ तो 3 दिन कर्फ्यू हुआ, अनाज पानी नहीं मिल रहा था, ऑटो ठेला बंडी बंद हो गए थे। हमारे कमिश्नर के खान साहब प्रेस वालों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे थे। सालारे मिल्लत हमेशा कहते थे कि रूम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था। वाजिद अली खान रंगीले पाँव में घुंघरू बांधकर नाच रहे थे। खासिद आकर बोला सरकार दुश्मन दाखिल हो चुका है किले में, किले का मुहासरा कर चुका है, सरहदों पर कब्जा हो चुका है, हमारी शिकस्त हो जाएगी। तो वाजिद अली खान ने कहा अरे बेवकूफ ऐसा नहीं बोलना, ऐसा बोल कब्जा दुश्मन का फतेह सरकार की। जब असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, अकबर साहब को नहीं बचाया, तो एक खान साहब ने कहा कि नहीं अकबर साहब को पुलिस नहीं बचाया, पुलिस वाले जानी नहीं गोली मारकर बचाई। अरे अल्लाह ने खालिक ने अपने मखलूक की खिदमत करने वाले को बचाने के लिए जानी के दिल में हिदायत डाली और हुक्म दिया कि जानी तू गोली चला, मेरा महबूब बंदा दुश्मन का मुकाबला कर रहा है। तो जानी ने गोली चलाई, जानी को अल्लाह ने मर्द बनाया और गोली चलाई। अरे एक खान साहब कौन सा गनमैन आपका किसको बचाया? क्या आपका गनमैन इंदिरा गांधी को बचाया, राजीव गांधी को बचाया, YS राजशेखर रेड्डी को बचाया, परिटला रवि को बचाया, इंदिरा रेड्डी को बचाया, माधव रेड्डी को बचाया? अरे खुद आपके पुलिस ऑफिसर हेमंत करकरे को नहीं बचा सके, उमेश चंद्रा IPS को नहीं बचा सके, SK व्यास को नहीं बचा सके, तो अकबर साहब को क्या बचाते? ये तो अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह ने जानी को हिदायत दी और अल्लाह ने अकबर साहब को बचाया। फिर आज हमारा पुलिस का निजाम यह चुका है कि DCP साहब ट्रांसफर्स में लगे हुए हैं, ACP प्लाटों और प्लाटों पर कब्जा लेने में मसरूफ है। सर्कलों का ये हाल है कि मामूल वसूल कर रहे हैं शराबियों से, सूदखोरों से, टपोरियों से, सटोरियों से और दल्लालों से, और SI गाड़ी रोड पे डालकर चालान RC बताओ, रजिस्ट्रेशन बताओ, ऊपर की लाइट आ रही नीचे की लाइट क्यों नहीं आ रही? तेलुगु फिल्मों की हीरो की तरह ऐनक लगाकर पूछते हैं। अरे और मकबरों का ये हाल है
کہ جا کے ٹھہر جاتے سرکل صاحب کے سامنے, بولیے سرکل صاحب کیا کھاتے, کون سی پیتے, کیسی ہونا. ارے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ پولیس نہیں بلکہ مخبر چلا رہے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں کہ غنڈہ گردی کو بند کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ غنڈہ گردی بند نہیں ہوگی تو یاد رکھو حیدرآباد کا مسلمان خاموش نہیں بیٹھے گا. آسمان بے رنگ ہے تو بے رنگ ہی صحیح, زمین ہم پہ تنگ ہے تو تنگ ہی صحیح. ہم امن چاہتے ہیں دوستو, جنگ کبھی نہیں. اگر تم جنگ چاہتے ہو تو پھر جنگ ہی صحیح. ارے ہم اپنے قائدین کو بچانے کے لیے ہمارے کارپوریٹرز کو صدر مجلس کے حکم پر ریوالورز کے لیے داخل کیا تو اخبار والوں نے اچھال دیا کہ مجلس کے قائدین ریوالور لے رہے ہیں. ارے چاقو جمبیے سے نہیں, اگر ریوالوروں سے جنگ چاہتے ہو تو پھر ریوالوروں سے ہی صحیح. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اپنے قائدین کو بچانے کے لیے. حلقہ ملک پیٹ کا جہاں تک تعلق ہے, احمد بلالہ صاحب آنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام, سب اسٹیشن کروڑوں روپے کا, اوور برج کا اناگریشن 1,80,00,000 کا, تمام ملک پیٹ کے اندر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. ہم احمد بلالہ صاحب نے تمام ملک پیٹ کا محاصرہ کر چکے ہیں. اب مخالفین اور منافقین کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مت بھولو کہ یہاں چاروں طرف پانی ہے, تم جزیرے میں ہو, سمندر سے عداوت اچھی نہیں ہے. اپنے اوقات میں رہو اور مجلس اتحاد المسلمین کی جماعت سے وابستہ ہو کر نوجوانوں بیرک ترس الدین اویسی صاحب کے ہاتھ مضبوط کرے تاکہ آنے والے ہر حالات کا مجلس مقابلہ کر سکے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عالی جناب جعفر حسین میراث صاحب, ڈپٹی میئر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن سے گزارش ہے کہ آپ سے خطاب فرمائیں. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈائس پہ تشریف فرما جناب سید احمد پاشا قادری صاحب, معتمد عمومی مجلس اتحاد المسلمین و ایم ایل اے حلقہ چار مینار, جناب ممتاز احمد خان صاحب ایم ایل اے, جناب احمد بلالہ صاحب ایم ایل اے, جناب موزم خان صاحب ایم ایل اے, جناب وراثت رسول خان صاحب ایم ایل اے, جناب امین الحسن جعفری صاحب ایم ایل سی, اور میرے ساتھی کارپوریٹر, مجلس کے صدر و معتمدین, میرے بزرگوں, دوستوں, ساتھیوں, پسہ پردہ بیٹھ کر سننے والے میری عزت ماں اور بہنوں, آج کا یہ احتجاجی جلسہ اعظمپورہ چوراہا پہ ہے جو حلقہ ملک پیٹ کانسٹنسی میں آتا ہے. آپ بخوبی واقف ہے مجلس اتحاد المسلمین پچھلے 53 سال سے آپ کی خدمت کرتے آ رہی ہے. مجلس اتحاد المسلمین فخر ملت جناب عبد الواحد اویسی صاحب نے یہ سوچا ہندوستان آزاد ہونے کے بعد میں مسلمانوں کے لیے ایک دستور بنایا گیا ہے, اس دستور کے اندر مسلمانوں کے حقوق ہے. چونکہ مجلس اتحاد المسلمین فخر ملت نے یہ سوچا اگر ہم مسلمانوں کی دستور کے لیے ایک سیاسی جماعت کیوں نہ بنائے, اگر یہ سیاسی جماعت جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑے گی, یہ مسلمانوں کے حقوق دلانے کے لیے نمائندگی کریں گی, تو سرزمین دکن کے اوپر فخر ملت نے مجلس اتحاد المسلمین کا دوبارہ احیا کیا. چونکہ فخر ملت وکیل تھے, وہ جانتے تھے, ان کو آنے والے دنوں کی تکالیف سے وہ واقف تھے. مجلس اتحاد المسلمین کا جب دوبارہ آیا ہوا تو آپ بخوبی واقف ہے مجلس اتحاد المسلمین نے ہمیشہ آپ کے بیچ میں رہا اور آپ کی خدمت کرتے آئی ہے. مجلس اتحاد المسلمین چاہے بلدیہ ہو, اسمبلی ہو, پارلیمنٹ ہو یا کونسل کے اندر ہو, ہمیشہ آپ کی آواز اٹھاتے جاتی ہے. اگر فرض کیجئے آپ یہ سوچئے یہ 53 سال پہلے اگر یہ سوچ نہیں ہوتی تو آج
दक्कन के मुसलमानों का क्या हाल होता था हम जानते हैं। दूसरे जमातों में भी मुसलमान है, मगर उनकी हालात क्या है? उनकी हालात ये है कि वो सियासी मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों के मसाइल असेंबली में बोले, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है मुसलमानों के मसाइल पार्लियामेंट में बोले, चूंकि वो खुद इतने कमजोर है। मैं बहैसियत डिप्टी मेयर पिछले 1.5 साल से मैं रह के देखता हूं, चूंकि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता है, और उसके अलावा हम अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी उम्मत में से है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है। हम कभी जिंदगी में इन लोगों के पीछे झुकते नहीं है। खास तौर से कभी कभी मुझे शर्म आती है कि हमारे सरकारी मुसलमान जब कोई फोटो के ऊपर नारियल फोड़ते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, इतना अफसोस होता है। अगर आज से 53 साल पहले ये चीज नहीं सोची जाती तो हर मुसलमान को ये फिरका परस लोग हमेशा झुका देते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम रहा। ये दूर अंदेशी थी, ये सियासत की दूर अंदेशी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक आज अपनी जमात बन चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर नौजवान ये समझता है कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही हूँ। हर बुजुर्ग ये समझता है कि मेरी उम्र 18 साल है, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करूंगा। चूंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब भी जीती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर सिपाही ये समझता है कि जीऊंगा तो शेर की जिंदगी जीऊंगा, अगर दुनिया से जाऊंगा तो मुजाहिद की जिंदगी के मुजाहिद की मौत लेकर जाऊंगा। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर हमेशा जानती है। आपको मालूम होना चाहिए 1999 के अंदर जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने एक इलेक्शन लड़ा जिस हल्के का नाम था चंद्रायन गुट्टा, लोग कहने लगे क्या ये नौजवान लड़का आखिर ऐसे बड़ा मुकाबला करेगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के जांबाज सिपाहियों ने साथ दिया, खास तौर से मेरे बारकस के लोगों ने साथ दिया, जो अरब भाइयों ने साथ दिया, देकर यह बता दिया हमको अकबरुद्दीन अवैसी चाहिए, हमको अकबरुद्दीन अवैसी चाहिए। चूंकि चंद्रायन गुट्टे के लोग जानते थे अकबर साहब की काबिलियत के बारे में, मालूम था उनको। जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायम हुई आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है, कभी अवैसी खानदान को शिकस्त नहीं हुई। ये करम है मेरे पाक रब्बुल पाक का, जिन्होंने ये महसूस किया कि ये खानदान कौम की खिदमत कर सकता है। उसी तरह अब खास तौर से असदुद्दीन अवैसी साहब जब 2004 के अंदर पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, सालार मोहतरम ने यह महसूस किया कि मेरी सेहत साथ नहीं दे रही है, इसीलिए मैं मेरे नौजवान बेटे को इस हल्के से उम्मीदवार बनाऊंगा। तो अवाम ने लब्बैक कहा और ये सोचा कि आइए असदुद्दीन अवैसी साहब को हम ये मौका देंगे। तभी भी दुश्मनों ने एक अजीब व गरीब साजिश रचाई। हर साजिश के अंदर ये दुश्मन ये सोचते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमजोर करना। वो टाइम पे तमाम दुश्मन इकट्ठा हो गए और ये सोचने लगे हम कोई ऐसे उम्मीदवार को ठहराए जो असदुद्दीन अवैसी से मुकाबला करे। चूंकि उनकी हिम्मत नहीं थी, सालार मोहतरम जब इलेक्शन लड़ते थे तो लोग डरते थे, यही सोचे कि असदुद्दीन अवैसी एक नौजवान है, शायद तजुर्बा नहीं होगा, इसके लिए इन लोग एक मुश्तरका कैंडिडेट को तलाश करे। उस कैंडिडेट को उनके दिमाग में ये आया, चूंकि टांडूर विकाराबाद चवड़ला भी हैदराबाद पार्लियामेंट में आता था, तो फिल्म स्टार को लाने का इन लोग सोचे। ये लोग ये सोचे कि विजय शांति को हैदराबाद पार्लियामेंट से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जाए। वो ऐलान होता है बीजेपी का, जब विजय शांति इलेक्शन का ऐलान करती है तो यही आजमपुरा चौरस्ते से नौजवान खुश हो जाते हैं और ये लोग ये कहते हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट, जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद पार्लियामेंट में नहीं थी तो चलो हम सब जाके हैदराबाद पार्लियामेंट में काम करेंगे और ये बता देंगे कि जब भी नतीजा निकलेगा तो इंशाअल्लाह विजय भी हमारी होगी, विजय भी हमारी होगी। दूसरे नौजवानों ने कहा कि बेशक विजय हमारी होगी, शांति हमारी होगी।
शांति हमारी होगी, ये नौजवानों का ख्याल था। उसी तरह जब 2009 का इलेक्शन आया, सदर मोहतरम ने ये महसूस किया कि मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी जो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है जहां से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जीत सकती है, नुमाइंदगी कर सकती है। सदर मोहतरम ने गहराई से सोचा, उसके बाद सदर साहब को ये ख्याल आया क्यों ना ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी को कोई ऐसे नौजवान के भाग दौड़ दे। उसके बाद में सदर साहब सोचे, क्योंकि मेरे अरब भाई को ये कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारी देते हैं, जबकि निजाम फौज के अंदर जब निजाम को फौजियों की जरूरत थी वो टाइम पे अरब यमन से बुलाए थे। उसके बाद में आज जो बारकस कहते हैं, पहले जमाने में इसको बैरक्स बोलते थे, ये बैरक्स के अंदर तमाम अरबों को रखा। उसके बाद उनको हैदराबाद का मोर्चा दिया। उसी तरह असदुद्दीन अवैसी साहब ने यह महसूस किया कि अहमद बलाला यहाँ के लिए सूटेबल कैंडिडेट है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये मलकपेट की अवाम ने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को कामयाबी दिला दिया। उसके बाद आज ये महसूस कर रहे हैं कि बेशक सदर मोहतरम की ये दूर अंदेशी थी। आज जो अहमद बलाला को यहाँ से एमएलए बनाए हैं, उन्होंने हर तरक्की काम में सबसे आगे है, रोज नौजवानों में रहते हैं, रोज मेरे माँ और भाइयों की बहनों की खैरियत पूछते हैं, अपने हल्के में तरक्की के लिए काम करते हैं। तो यही वो अहमद बलाला है जो आपके एमएलए की हैसियत से इस जगह पे काम कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के आप कारनामे बखूबी वाकिफ है। जब ये अकबरुद्दीन अवैसी साहब पे 30 अप्रैल को 11:15 बजे हमला हुआ, को कई तरीके के बातें हुए, मगर आप लोगों की दुआओं से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अकबरुद्दीन अवैसी साहब को सेहत से रखा और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अकबरुद्दीन अवैसी साहब आपके हमारे बीच में आएंगे और उसी बारकस ग्राउंड पे तकरीर करके बताएंगे कि अकबरुद्दीन अवैसी कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। अकबरुद्दीन अवैसी सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के साहिबजादे हैं, वही अकबरुद्दीन अवैसी है। इस बीच के अंदर एहतजाजी जलसे चल रहे थे, कुछ जलसों में मुझे भी तकरीर करने का मौका मिला। कल खिले गोलकुंडा में जलसा था तो एक ने मुझसे कहा, जब मैं वापिस आ रहा था मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगा, भाई आपकी जबान बहुत साफ हो गई। मैं परेशान हो गया, जबान साफ होने का मतलब क्या है? उनको ये नहीं मालूम है मेरे सियासी उस्ताद असदुद्दीन अवैसी है और तकरीरी उस्ताद अकबरुद्दीन अवैसी है। हमारी जबान हमेशा साफ रहती बाबू, हम किसी से डरते ही नहीं। हमारा भी अपना एक ही स्टाइल है। पहले तो हम किसको अपना बोलते ही नहीं, अगर अपना बोले तो छोड़ते ही नहीं, ये अपना हमारा स्टाइल है। पहली चीज आपको मालूम होना चाहिए, लोग मुझसे कह रहे, आज एक साहब ये बोल रहे थे कि भाई आप बहुत डायरेक्ट बोल रहे। अरे मैं बोला भाई मैं डायरेक्ट क्या बोला भाई? नहीं आप बहुत डायरेक्ट बोल रहे। अरे मैं बोला डायरेक्ट कहाँ बोला भाई? पहलवान को गुल्लती पहलवान बोला, डायरेक्ट क्या हुआ? इनडायरेक्ट ही बोला, वो भी इनडायरेक्ट ही बोला। अब इन लोग उसको भी डायरेक्ट समझ रहे, तो मेरा क्या कसूर है? एक ने कहा, मेरा साहब मुझसे आके ऑफिस में बोलते हैं कि भाई आप थोड़ा ऐसा कहीं को बोल रहे हैं, आप बहुत बोल रहे हैं कहते। अरे मैं बोला मैं बहुत कहाँ बोला भाई, अभी तो बोलना शुरू ही नहीं करा। इन लोग इसको बहुत समझ रहे। मैं क्या बोला? मैं बोला गुल्लती पहलवान। अरे भाई गुल्लती को गुल्लती नहीं बोलूंगा तो क्या बिरयानी पहलवान बोलूंगा? कैसा तुम्हारी जो हरकत थी वो बयान करा। मैं तुम्हारे बारे में बोला, तुम सही नहीं बोल रहे, नार्को टेस्ट कराओ। अब बोले आप पुलिस को मशवरा दे रहे नार्को टेस्ट कराओ। अरे नार्को टेस्ट कराने का मतलब क्या है? अरे बाबा तुम सही अगर बोल देते तो मैं पुलिस को मशवरा कहीं को देता नार्को टेस्ट कराने का। तुम किसके पे वास्ते काम कर रहे हैं वो बता दो, वरना अब मैं पुलिस को मशवरा दे रहा हूं ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराओ, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराओ। सब उगल देते। ये हालत है आजकल। और आपको मालूम होना चाहिए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन एक सियासी कुव्वत है, सियासी ताकत है। आप मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से जुड़े हुए रहिए। आने वाले दिलों के अंदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ही आपकी सच्ची जमात है। और आज आप ये हैत कर लीजिए, हमको मजलिस चाहिए महफिल नहीं, हमको मजलिस चाहिए महफिल नहीं है। इंशाअल्लाह वक्त की कमी है, दोबारा अगर जिंदगी बाकी रही
तो बेशक बहुत बोलने का मतलब क्या होता, वही बोलूंगा जिस दिन अकबर साहब आएंगे ना, उसी दिन बोलूंगा और ये बता दूंगा कि बोलना किसको बोलते। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज। आली जनाब मोहम्मद मुअज़्ज़म खान साहब मौजूद रुकन असेंबली हल्के बहादुरपुर से गुजारिश है कि आपसे खिताब फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस डाइस पर तशरीफ़ फरमा जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब, मोहतमत उमूमी व MLA चार मीनार, जनाब मुमताज़ खान साहब MLA याक़ूतपुरा, जनाब अहमद बलाला साहब MLA खल्क़े आज़ा, जनाब डिप्टी मेयर साहब जाफ़र हुसैन मेहरा साहब और दीगर मजलिस कॉरपोरेटर्स, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, बैठकर सुनने वाली इज़्ज़त माफ़ माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का एहतजाजी जलसा है जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर क़ातिलाना हमला किया गया है। मैं इस जलसे से यही कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के ऊपर हमेशा ये मुनाफिकाना हमले किए गए हैं। ये कोई नए नया है। क़ायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग, फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब, सालार मिल्लत आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब, ये हमारे जितने मरहूम सदरां थे सारे अपने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के दौर में हर वजह से दुश्मन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हमेशा ये कोशिश करते रहे कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। और आज तो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि हमारे लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर क़ातिलाना हमला किया गया है। ये हमला क्यों किया गया है? ये कोई ज़ाती मफाद के लिए नहीं किया गया है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क्या करना चाहते थे अवाम के लिए, वो क्या खिदमत कर रहे थे आपके लिए। वो चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और आंध्र प्रदेश और हैदराबाद के अंदर मुसलमानों की तरक्की के लिए काम करना चाहते थे। वो चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जिस ज़मीन के ऊपर जो गवर्नमेंट लैंड है उसके ऊपर 15 से 20 हज़ार गरीबों के लिए घरां बनाना चाहते थे। वो चंद्रायन गुट्टे के अंदर नैक लाना चाहते थे। वो चंद्रायन गुट्टे के अंदर ज्वेल पार्क लाना चाहते थे। वो चंद्रायन गुट्टे के अंदर जितने दीगर गवर्नमेंट के स्कीमात है उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके आना चाहते थे। ये वो लोग को नहीं देखा गया है। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के इतने कारनामे हैं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हर जिंदगी की चीज़ से आप लोग वाकिफ़ है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन इस हैदराबाद के अवाम के लिए क्या चीज़ करना चाहती थी। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के तरफ से जो स्कॉलरशिप हमारे नौजवान बच्चों को मिल रही है वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की तरफ से मिल रही है। और वक्फ बोर्ड के ज़मीना गवर्नमेंट से वापस हासिल कर रही है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन। और हर जगह जितने भी काम आए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कर रही है, ये देखा नहीं गया है। और उसी वास्ते से ये दुश्मन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हमारे लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर हमला किए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बुजुर्गान दीन का सदका और हमारे बुजुर्गों और हमारे नौजवान बहनों के दुआओं का नतीजा है कि जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को अल्लाह ताला ने सेहत दी। इंशाअल्लाह ताला आपके दरमियान में बहुत जल्द अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आकर खिताब करेंगे और आपकी खिदमत करेंगे। और जहाँ तक हो सका आपसे मैं यही कहूँगा
کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہیے. شکریہ.